Fill the correct form of the verb. It is I am against all you. I am against all you dash dash ब्रैकेट में लिखो प्लान प्लान टू डू full stop your parents through your parents through the years dash ब्रैकेट में लिखो केयर for you and have done everything possible for your welfare full stop रिपीट कर रही हूं दो ब्लैंक्स हैं आई एम अगेंस्ट ऑल यू डैश ब्रैकेट में प्लान टू डू फुल स्टॉप योर पेरेंट्स थ्रू द ईयर्स डैश ब्रैकेट में केयर फॉर यू and have done everything possible for your welfare full stop why are you being being cruel to them by dash ब्रैकेट में लिखो express your dislike for them question mark why are you being cruel to them by dash bracket में express your dislike for them question mark remember it dash ब्रैकेट में लिखो BE a sin to torture parents comma particularly aging parents full stop देखो बेटा रिमेंबर इट डैश ब्रैकेट में BE a sin to torture parents comma particularly aging parents full stop remember it is on their blessings that your tomorrow dash और बेटा ब्रैकेट में लिखो रेस्ट फुल स्टॉप besides this comma your tomorrow also dash ब्रैकेट में लिखो depend upon all the values they dash ब्रैकेट में लिखो teach you yesterday full stop क्रॉस चेक करो लाइन को रिमेंबर इट इज ऑन देयर ब्लेसिंग्स that your tomorrow dash
ब्रैकेट में रेस्ट लिखा था, फुल स्टॉप. Besides this, comma, your tomorrow also dash bracket में depend upon all the values they dash bracket में teach you yesterday, full stop. You should immediately make a you should immediately make a resolution and and tell them you dash बेटा ब्रैकेट में बीई you dash ब्रैकेट में बीई loyal to them now and always. फिर से क्रॉस चेक करो. You should immediately make a resolution and tell them you dash bracket में be loyal to them now and always, full stop. God is best dash बेटा ब्रैकेट में लिखो सर्व SERVE. God is best dash bracket में serve by serving your parents. Full stop. Recall the good old days of your childhood and you dash bracket में acknowledge the truth of what I have told you. Full stop. I think so there are 10 blanks. उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 minute और इसको जल्दी से सॉल्व करो, फिर इसको डिस्कस करेंगे हम लोग. Ma'am, can you please repeat 5th and 6th? 5th and 6th was बेटा यहाँ से है. Remember it dash bracket में BE a sin to torture parents, comma, particularly aging parents, full stop. Remember it is on their blessings that your tomorrow dash bracket में rest, full stop. Besides this, comma, your tomorrow also dash bracket में depend upon all the values they dash bracket में teach you yesterday, full stop. Excuse me, ma'am. हाँ बेटा सर बस बोलो. Ma'am, is there a blank after serve? हाँ बेटा ये वाला था ना. God is best dash bracket में serve by serving your parents. ठीक है. No, ma'am, after this. हाँ बेटा. Recall the good old days of your childhood and you dash, तो ब्रैकेट में acknowledge the truth of what I have told you. Okay, ma'am. उसके बाद serve ब्रैकेट में by serving your parents, full stop. Recall the good old days of your childhood and you dash ब्रैकेट में acknowledge the truth of what I have told you.
हाँ जी, यशविन बिगनिंग विद यू, आई एम अगेंस्ट ऑल यू डैश टू डू प्लान, क्या लिखा है बेटा यशविन? आई एम अगेंस्ट ऑल यू, बेटा दोनों करेक्ट है। अगर आपने लिखा है आई एम अगेंस्ट यू ऑल, आर प्लानिंग भी करेक्ट है, या प्लान किया ये भी करेक्ट है। आपने बोला आई एम अगेंस्ट ऑल यू आर प्लानिंग, तो इसका मतलब हो गया तुम अभी प्लान कर रहे हो उसके अगेंस्ट हो, या फिर जो तुम प्लान करते हो। तो प्लान सिर्फ लगाया है तो भी ठीक है, आर प्लानिंग लगाया है तो भी ठीक है। नेक्स्ट है नंदिनी, टू डू योर पेरेंट्स थ्रू द इयर्स डैश फॉर यू, ब्रैकेट में केयर था बेटा, क्या लिखा? cared, बेटा टाइम दिया हुआ है ना थ्रू द इयर्स नंदिनी, तो हैव केयर्ड लगाओ। टाइम दिया होता है ना तो फिर आप हैव लगाएंगे, तब से लेके अभी तक केयर किया है उन्होंने। तो आपने बोला योर पेरेंट्स थ्रू द इयर्स हैव केयर्ड फॉर यू, और केयर्ड बोलेंगे तो पुराने टाइम में किया था, तब फिर वो गलत हो जाएगा। सिद्धि, एंड हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल फॉर योर वेलफेयर। नाउ होल्ड ऑल चिल्ड्रन, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कंफ्यूजन हो रहा था कि इसमें क्या आना चाहिए, तो ये क्लू हमेशा ले लेना। सेंटेंस में जब एंड लगा हुआ होता है तो एंड के दोनों तरफ उसी फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाते हैं। तो अगर आपने ये वाला सेंटेंस पूरा देखा, थ्रू द इयर्स डैश फॉर यू एंड हैव डन, एंड के बाद अगर हैव डन है तो इट इज श्योर कि उसके पहले भी हैव आएगा। तो एंड अगर मिडिल में हो सेंटेंस में तो आप देखना दोनों तरफ सेम फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओ, फिर तो आपको एक लिखा हुआ आएगा, आप उसी के बेसिस पे दूसरा भी लगा देना। इसलिए भी इस लॉजिक के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो हैव डन दिया था तो हैव केयर्ड आएगा, और हैव का मतलब हो गया तब से लेके अभी तक केयर किया है, इसलिए। Siddhi, the third blank is why are you being cruel to them by dash your dislike for them? ब्रैकेट में एक्सप्रेस था बेटा, क्या लिखा? expressing, एक्सप्रेसिंग, ing आ जाएगा बेटा, by expressing your dislike for them. नेक्स्ट है प्रेरणा, रिमेंबर इट डैश अ सिन टू टॉर्चर पेरेंट्स, क्या लिखेंगे? ma'am being, एक तो तेरे को कंफ्यूजन हो गया, जब बीई होता है ब्रैकेट में तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बीन और बीइंग लगाएंगे। बीई अगर ब्रैकेट में है तो इज, एम, आर, वॉज, वर, और बेटा विल, हैज, हैव कुछ भी आ सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि बीन और बीइंग लगाएंगे। तो हमने बहुत सिंपल हो गया इसका मतलब, तो पाप है के लिए क्या बोलेंगे? इज। तो हमने ब्रैकेट में लगाया या बाहर निकाल के लगाया, रिमेंबर इट इज अ सिन, तो बीन की जरूरत ही नहीं। अनन्या, इट इज अ सिन टू टॉर्चर पेरेंट्स, पर्टिकुलरली एजिंग पेरेंट्स। रिमेंबर इट इज ऑन देयर ब्लेसिंग्स दैट योर टुमारो, क्या लिखा है? रेस्ट है बेटा ब्रैकेट में। is resting, अभी रेस्ट कर Rests. रहा है, हाँ एस लगेगा बेटा, रेस्ट्स। तो उनकी ब्लेसिंग्स पे आपका टुमारो रेस्ट करता है, कर रहा है नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। रेस्ट्स, और टुमारो सिंगुलर है तो आपने एस लगाया, रेस्ट्स। सर्वस नेक्स्ट वन, बिसाइड्स दिस योर टुमारो ऑल्सो डैश अपॉन ऑल द वैल्यूज, क्या आएगा बेटा? Ma'am depends. एस आ जाएगा, ठीक है। नारायण, अपॉन ऑल द वैल्यूज दे डैश यू येस्टरडे, ब्रैकेट में टीच था बेटा, क्या लिखा आंसर में? Taught. टॉट यू, वेरी गुड। येस्टरडे लास्ट डे जब दिया होता है तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कुछ और लगता ही नहीं है, तो येस्टरडे के साथ इसने लगाया टॉट। कनिष्का, you should immediately make a resolution and tell them you dash loyal to them now and always. will be, हाँ, will be भी लगा सकते हैं, you are अगर किसी ने लिखा है तो भी ठीक है। You are loyal is also correct, you will be loyal, that is also correct.
Janvi, the next one is God is best dash by serving your parents. ब्रैकेट में सर्व था बच्चे. क्या I'm लिखा? serving. नहीं I'm नहीं, served. हाँ God Serving. नहीं बेटा, ed. God is best served. God is best served by serving your parents. दो बार तो वैसे भी बेटा ing नहीं आएगा. Rishika madam, last one. Childhood and you dash the truth of what I have. Recall the good old days of your childhood and you dash the truth of what I have told you. Bracket में acknowledge है ऋषिका. क्या लगाया अभी? Acknowledging. You acknowledging. You will acknowledge. तुम मान जाओगे. You will मैम acknowledge. यू शैल एक्नॉलेज आ सकता है. क्या क्या लगाएंगे बेटा सर्वस्व? मैम शैल एक्नॉलेज. हाँ shall लगा सकते हो. Will लगाओ, shall लगाओ. You shall acknowledge या you will acknowledge. 10th है ओके. बेटा, आप अपनी मार्किंग खुद कर लो कितने आए हैं उसमें से. तो अगर 50% से ज्यादा आए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं ही आए हैं तो सोचो कि ये टेंस क्यों गलत हो रहा है, और उसके बाद आप आराम से मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि मैम ऐसा क्यों नहीं. लेट अस कम टू द सेक्शन जहां हम फ्रेजल वर्ब्स लिख रहे हैं. आज हमारा फ्रेजल वर्ब का नंबर है बेटा 31. गिव. आज जो हम फ्रेजल वर्ब्स लिख रहे हैं दैट इज 31. देखते ही देखते इतने सारे हो गए, और 31 नंबर पे हमारा वर्ड है फ्रेजल वर्ब्स का गिव. आप जानते हो गिव के साथ गेव, गिविंग, गिवन कुछ भी आ सकता है. गिव, गेव, गिवन, गिविंग, एनीथिंग. ज्यादा नहीं है बेटा, 5-6 ही है, छोटे छोटे से ही हैं. लिखो जरा. गिव के साथ पहला प्रीपोजिशन लिखो अवे, अवे. फिर उसके नीचे लिखो इन, इन. फिर बेटा उसके नीचे लिखो अप, अप. फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो 4th नंबर पे टू, TO, टू. और बेटा 5th है आउट. अंडर दैट राइट डाउन आउट. और लास्ट लिखो वे, WAY, वे. तो गिव, गेव, गिवन, गिविंग, इसके फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो हैं गिव अवे, गिव इन, गिव अप, गिव टू, गिव आउट. और लास्ट हमने लिखा गिव वे. अब गिव का मतलब देना होता है, पर उसको कैसे चेंज कर दिया इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा, वो देखो. सबसे पहले हमने बोला गिव अवे. तो गिव अवे का मतलब होगा बेटा डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना. अब इसमें एक चीज खास याद रखना, ऐसे सेंटेंसेस बहुत आते हैं जैसे गेस्ट जो है वो चीफ गेस्ट आए थे और वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो वहां पर सेंटेंस में गिव लगा हुआ आएगा, आपको उसके साथ अवे लगाना है. बंदा खड़ा हुआ था, वो पैम्फलेट्स गिव अवे कर रहा था, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. सेकंड बेटा आपने लिखा गिव इन. तो पहले तो मीनिंग लिख लो, फिर मैं उसको समझाऊंगी. गिव इन के आगे लिखो सरेंडर, सरेंडर. और उसके बाद है गिव अप, उसके लिए लिखो स्टॉप और लीव, स्टॉप और लीव. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो क्या है. हम एक जगह कह रहे हैं गिव इन, और एक जगह हम आपसे कह रहे हैं गिव अप. गिव अप का मतलब स्टॉप, बंद कर दिया, छोड़ दिया. गिव इन का मतलब सरेंडर कर दिया. मैम क्या अंतर है? बेटा अंतर ये होता है, सरेंडर हम किसी के सामने कर देते हैं, और गिव अप हम छोड़ देते हैं अपनी मर्जी से. तो दोनों में डिफरेंस है ये. गिव इन होता है सरेंडर किसी के सामने, और गिव अप का मतलब स्टॉप या छोड़ दिया आप. नेक्स्ट था बेटा गिव टू, और बहुत ही अजीब सा इसका है, लिखो गिव टू का मतलब इनहैबिट.
अकस्टम हो जाना, किसी चीज की आदत पड़ जाना, गिव टू। नेक्स्ट है बेटा गिव आउट, बहुत कॉमन, बहुत ही सिंपल, गिविंग आउट। तो गिव आउट के आगे पहला तो आप लिख लीजिएगा अनाउंस, और बेटा कॉमा लगा के एमिट, EMIT, एमिट। एमिट का मतलब क्या होता है? जैसे स्मोक इज, द फैक्ट्री इज गिविंग आउट स्मोक, एमिटिंग, दैट इज। हाँ, लास्ट वाला बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम तो WAY वे को प्रिपोजिशन मानते ही नहीं है, तो हम कहां से इसको याद करेंगे? बेटा WAY गिव के साथ वे लगा सकते हैं फ्रेजल वर्ब में, और इसका मतलब होता है बेटा कोलैप्स, टूट जाना। गिव वे का मतलब टूट जाना, बिल्डिंग आ जाएगी, ब्रिज आ जाएगा, कोई भी चीज गिवन वे का मतलब हो गया कोलैप्स, टूट गया। तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, बहुत सिंपल सिंपल हैं ये वाले तो गिव के, इंपॉर्टेंट भी है। गिव वे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कभी WAY तो लगाएंगे नहीं, इसलिए वो दे देते हैं उठा करके इसको। और बेटा गिव इन और साथ में आप गिव अप, दोनों में डिफरेंस याद कर लिया आपने। डिस्ट्रीब्यूट करने वाले का मतलब गिव अवे हो गया। फिर हम आगे पहुंचते हैं, आदत पड़ जाती है गिवन टू, और बेटा लास्ट था गिव आउट, वेरी सिंपल, एमिट करना, अनाउंस करना, दैट इज। फिल वन वर्ड लिखेंगे, हमारी इससे प्रैक्टिस हो जाती है, आराम से पीछे ढूंढ ढांड के फिर लिखते रहना, कोई ऐसी बात ही नहीं है बेटा। आज के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो लिख लेते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस फॉर टुडे इज द कैडेट्स, फिल वन वर्ड के सेंटेंसेस लिखो। द कैडेट्स, CADETS, will pass dash next month after completing their training, full stop। सेकेंड सेंटेंस लिखो, why did they pull the shops dash question mark, why did they pull the shops dash question mark। थर्ड सेंटेंस लिखो, the students were pulled dash by the principal for their misbehavior, फोर्थ सेंटेंस बेटा, India pulled dash victory in the last stage of the match, फोर्थ सेंटेंस है, I think she will pull dash her illness very soon। सिक्स सेंटेंस लिखेंगे बेटा, he is pulling well dash his wife these days। Seventh one is, the riots were put dash by the local police, put dash by the local police। एट सेंटेंस लिखेंगे, the meeting had to be put
The meeting had to be put dash because the president could not come. Because the president could not come. That is all. 8 sentences हैं बस बेटा. पुल के हैं आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे. पास के हैं देखो जरा, इसको कर लो जल्दी से. डिस्कस करती हूँ फिर मैं अभी. Ma'am, can you please repeat the fourth sentence? हाँ बेटा. 4th सेंटेंस लिखिएगा. इंडिया pulled dash victory in the last stage of the match. In the last stage of the match. हाँ जी बेटा. फर्स्ट वाला जो था हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आर्यन शर्मा. The cadets will pass dash next month after completing their training. Out. Out. बेटा the cadets will pass out. ठीक है. परिनिधि, why did they pull the shops dash? क्या लिखा है परिनिधि? Down. 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 टाउन हो गया. वेरी गुड. नेक्स्ट हो जाएगा बेटा फिर इसमें हमारा सिद्धि. द स्टूडेंट्स वर पुल्ड डैश बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिसबिहेवियर. क्या लिखा? ये भी आसान है. पुल्ड अप और पुल्ड अप नहीं बेटा, पुल्ड अप. पुल्ड अप का मतलब हो गया डांट पड़ना, स्कोल्डिंग, पनिशमेंट. अनुष्का, इंडिया पुल्ड डैश विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच. क्या आएगा बेटा? Off. वेरी गुड. OFF ऑफ. ध्रुव, आई थिंक शी विल पुल डैश हर इलनेस वेरी सून. क्या लिखा बेटा? Through. थ्रू. पुल थ्रू हर इलनेस वेरी सून. यजविन, ही इज पुलिंग वेल डैश हिज वाइफ दीज डेज. क्या लिखा है? With. विद. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है नंदिनी. द रॉयट्स वर पुट डैश बाय द लोकल पुलिस. क्या आएगा बेटा? नंदिनी, द riots वर पुट डैश बाय द लोकल पुलिस. क्या लिखा बेटा? बेटा क्रश कर दिया इसका मतलब हो गया, तो आप लिखेंगे द riots वर पुट डाउन. द riots वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस. पुट डाउन का मतलब क्रश कर देना. जानवी, लास्ट है. द मीटिंग हैड टू बी पुट डैश बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम. द मीटिंग हैड टू बी पुट क्या होना चाहिए? पुट के साथ लगाएंगे OFF. पुट ऑफ.
पुट ऑफ का मतलब हो गया बेटा, हमने करा हुआ है, दैट इज इसको वो कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से पुट के तो आपने लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं? लिखे हुए हैं, यस। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। चलो बेटा, जहाँ आप ओसांटा का कैरेक्टर स्केच लिख रहे हैं थोड़ा सा वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। आई डू होप वी फिनिश इट, फिनिश हो जाए तो अच्छा ही है। ओसांटा का कैरेक्टर स्केच कल हमने यहाँ तक लिखा था लास्ट क्लास में, अकॉर्डिंग टू द सेल्वेटोर शी इज अगली एज द डेविल। पैरा चेंज करो और नेक्स्ट लाइन में लिखो, बट Can you repeat the line before the devil one? She had been she is 24 or 5 older than he was, full stop. She had been engaged to a man who, comma, during his military service, comma, was killed in Africa, full stop. According to Salvatore, comma, she is, comma, ugly as the devil. ugly as the devil को inverted commas में लिख लिया। आज हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन बेटा, बट she had a good heart, but she had a good heart, HEART, full stop. She judged Salvatore by his goodness and not his ailment, AILMENT, AILMENT. But she had a good heart, full stop. She judged Salvatore by his goodness and not his ailment, AILMENT का मतलब बीमारी, full stop. She had seen him at the fest, FEST. She had seen him at the fest, and since then she had fallen in love with him. Full stop. Again next line पर आ जाते हैं बेटा. We will change the paragraph. Osanta is a mature, practical girl. Osanta is a mature, practical girl. Full stop. She has a little money of her own. She has a little money of her own. Full stop. With this, she thinks that she can win the young man whom she secretly loves. Full stop. So mature, practical girl, उसके पास अपना थोड़ा सा पैसा है, she has a little money of her own. With this, इस पैसे से she thinks that she can win the young man whom she secretly loves. Full stop. Very cleverly, comma, she tells Salvatore's mother that if her son marries her,
if her son marries her, comma, she can buy him a boat. She can buy him a boat of his own. Of his own. She can buy him a boat of his own. मैं उसको बोट खरीदवा दूंगी, ऐसा प्रैक्टिकल ऑफर उसने दिया. थोड़ा सा और रह गया है, नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं. एक्ट 2 बेटा ऐप पे से कर लेना. सी यू नेक्स्ट वीक. बाय, टेक केयर. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.